Good morning, students. Let's continue the chapter alcohol, phenol, and ether. Okay, so I hope all of you are fine. Okay, so in this video, I'm going to discuss about the preparation of ethers, which is very important. Okay, so and also we'll see the physical and chemical properties of ethers. Okay, and later we'll see the applications of all these three: alcohol, phenol, and ether. Okay, so let's continue. So here the preparation of ethers, it has two main synthesis. See, these syntheses are very important synthesis. Okay. So first one is dehydration of alcohols and Williamson synthesis. Okay. This preparation we can prepare the ethers from alcohol by dehydrating the hydrogen, which means dehydration is nothing but removal of hydrogen. Okay. So here how we dehydrating this alcohols by using the dehydrating agent like phosphoric acid या फिर sulfuric acid हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं in the reaction. ठीक है. So here in this preparation of ethers, first one dehydration of alcohols में क्या होता है? When the alcohol is heated with dehydrating agent, which is concentrated H2SO4, which is a good dehydrating agent, and also phosphoric acid, ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं H3PO4. It gives the two products. Either ether भी हो सकता है या फिर it is an alkene भी हो सकता है. It can form depending upon the temperature. See, this is the important. By using जब हम लोग दो या एक H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर फॉस्फोरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है. तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब रिएक्शन तुम लोग डालोगे तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी इन दिस रिएक्शन वेरी सिंपल. अल्कोहल से हम लोग क्या फॉर्म किए हैं एपोक्सी सॉरी इथॉक्सी इथेन फॉर्म होता है या फिर इथीन फॉर्म होता है. हियर you can see it gives two products, either it is ether या फिर an alkene form होता है. ठीक है. So it is depending upon the temperature. So in these two reactions, this one is important reaction. First one, you can also see the second example in the textbook PDF. Okay. So here what happens? Example, we are taking the dehydration temperature. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंट लिया जा रहा है पर डिहाइड्रेटिंग टू yield the two products, either it is ether or an alkene. Okay. So here example dehydration of ethanol. यहाँ पर एक अल्कोहल लिया जा रहा है, मैं यहाँ पर एथेनॉल ले रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर एथेनॉल लिया गया है by H2SO4. यहाँ पर dehydrating agent लिया गया है H2SO4. In the condition you have to write H2SO4 which gives this. See here, this is ethoxy. This is this, you can see only this product. To this ethane there is a oxygen group is connected. तो यहाँ पर ethoxy group, ethoxy ethane. ठीक है. So this is very simple reaction. In this we are using the temperature. कितना टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दिस एथॉक्सी इथेन के लिए. ठीक है. फॉर अनदर रिएक्शन एथेनॉल से जो इथेन फॉर्म हो रहा है तो सेम रिड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम रहेगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है. तो हियर ऑल्सो सेम एथेनॉल से बट मोल ओनली 1 मोल लिया गया है. ठीक है. यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल इन द PDF टेक्स्ट बुक. You will easily understand. ठीक है. तो यहाँ पर what happens here, symmetrical ethers form हो जाएगा. See, remember in the both the reactions there is a symmetrical ethers are obtained for the primary alcohols by in this method. Okay. So here we are using higher temperature. ठीक है. और and also you can see the second example I told you. by using ethanol only 1 मोल रहेगा वहां पर. यहाँ पर जैसे 2 मोल ऑफ एथेनॉल लिया गया है फॉर एथॉक्सी इथेन के लिए, वहां पर 1 मोल ऑफ एथेनॉल लिया जाएगा बट टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा. टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा हायर टेम्परेचर रहेगा. वहां पर 413 टेम्परेचर केल्विन था विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर द इथेन प्रोडक्ट ऑल्सो सेम ethanol in the presence of 443 Kelvin temperature H2SO4. In this what happens वहां पर यहाँ पर H2O
क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक, रिमूव हो जाता है. तो यू विल गेट इथेन विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. Okay, so this is very important reaction which is dehydration of alcohol. See, ये बहुत ही simple और important reaction है, बहुत ही ज़्यादा simple reaction है, ठीक है. So next which is very important preparations of ethers which is Williamson synthesis. ठीक है, it has asked many times in the previous question paper. You can see उसमें पूछा गया है preparation of ethers by Williamson synthesis. Okay, so in this synthesis what happens, यहाँ पर हम लोग simple ethers भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर मिक्सड या फिर असिमेट्रिक, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ethers मैंने पहले ही जब भी इसके टाइप्स एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने बताया था, ठीक है. तो यहाँ पर simple as well as mixed ethers can be prepared in the laboratory by this Williamson synthesis. Okay, so in this method, this is very simple method. In this method, alkyl halide, see here you can see the example. ये विलियमसन सिंथेसिस में इस मेथड में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड. यू कैन सी हियर अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद दिस सोडियम अल्कोक्साइड. ठीक है, जब हम इन दोनों को ट्रीट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, या फिर यू कैन से सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, फॉर दिस इज फॉर असिमेट्रिक ईथर्स के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड इस्तेमाल करेंगे. ठीक, टू गिव डाई अल्काइल ईथर्स और अल्काइल अराइल ईथर्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन. सी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज वेल एज बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. इन केस तुम लोग को रिएक्शन याद नहीं आ रहा है तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शन. ओके, सो first of all, when you going to explain this Williamson synthesis, you have to keep in your mind कि reaction क्या है. First, अगर तुम लोग को ये reaction याद रहेगा ना, you can easily explain this synthesis in while you writing this. Okay, so सबसे पहले आपको ये reaction याद रखना है कि reaction में हम लोगों ने substrate यानी कि जब reaction product में convert नहीं हुआ तो हम लोगों ने क्या क्या लिया था. ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है. ठीक, so in this method very simple, मैंने पहले ही बोला alkyl halide is treated with sodium alkoxide और sodium phenoxide to give dialkyl ethers और alkyl aryl ethers. ठीक है, तो this is the method जो एक्चुअली में विलियम सिंथेसिस क्या बोला गया था, वो सिंथेसिस क्या था ये है. एंड हियर विथ द एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया, विथ द एग्जाम्पल. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है. तो आप लोग को ये भी एक्सप्लेन करना है एज वेल एज एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. SN2 मैकेनिज्म विच वाज वेरी सिंपल. मैंने प्रीवियस जो HED यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में बताया गया SN1 और SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है. तो ether is formed as the result of backside attack. See, this ether, it is formed, how it is formed as the result of backside attack हुआ है, उसके पीछे से अटैक हुआ है by alkoxide या फिर फिनॉक्साइड अटैक करता है. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल सकते हैं. ऑन किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर. ठीक है, अल्काइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड इज अल्काइल हैलाइड, सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड. ये क्या था जो कि इन द प्रीवियस मेथड में मैंने बोला था सोडियम फिनॉक्साइड या फिर सोडियम अल्कोक्साइड जो बोला था वो ये एग्जाम्पल है. और अल्काइल हैलाइड जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके लिए मैं इसका इतना डीपली बोल रही हूँ. ओके, सो देन यू विल गेट टी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. ठीक है, एंड सोडियम ब्रोमाइड विच इज एलिमिनेटेड. तो see, the alkyl halide is used in this reaction. It is must be primary. alkyl halide जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो प्राइमरी है इस रिएक्शंस में, याद रखना. ये प्राइमरी यानी कि फर्स्ट उसी को जाता है. ओके, सो हियर एग्जांपल जो मैंने बताया
T-butyl ether, this can be synthesized by the result of backside attack of this न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो कि फिनॉक्साइड या फिर अल्कोक्साइड अटैक करता है। ठीक है, किसको अटैक करता है? मिथाइल ब्रोमाइड को अटैक करता है। तो एलिमिनेट क्या हो गया? NaBr हो गया। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिला? वो T-butyl methyl ether मिला है। ठीक है, सो दिस इज द गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द विलियमसन सिंथेसिस। ओके, and also you can see in the textbook there is one more example, जो कि हम लोगों ने सोडियम इथॉक्साइड लिया है, उसके साथ T-butyl क्लोराइड वो लिया गया है। तो उसमें से आपको क्या मिला? आइसोब्यूटेन मिला विथ प्लस इथेनॉल मिला। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन मोर अबाउट द विलियम सिंथेसिस। ठीक है, सो बेसिकली जो विलियमसन सिंथेसिस जो है, यू कैन एक्सप्लेन by using these two. Okay, in brief you can also explain. सबसे पहले आपको example you write the explanation about this reaction and also write this reaction with example. Okay, so this is about the important preparations of ethers, which is the dehydration of alcohols and Williamson synthesis. Okay, so let's see the next one, which is physical properties as well as chemical properties of ethers. Okay, so let's see that. Here the physical properties of ethers. So in this physical properties only two main, जैसे कि physical property में normally क्या होता है? boiling point होता है, उसकी physical state क्या होती है वो होता है, melting point क्या होता है वो रहता है, उसकी solubility क्या होता है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो physical property of ether में क्या दिया गया है? A part और B part में divide किया है। A part में दिया गया है physical state and boiling points of the ethers, and next polarity and solubility of the ethers दिया है। तो let's see one by one physical state and boiling points. See in this very simple, सबसे पहला point जो है dimethyl ether लिया गया है या फिर and ethyl methyl ether. These are the gases. Remember this. Dimethyl ether and ethyl methyl ether are the gases. अदर ईथर्स आर कलरलेस। ये जो है सबसे पहले इसका फिजिकल स्टेट में जैसे एग्जांपल दिया जाएगा, ये गैसेस है, और बाकी जो है वो दूसरे ईथर जो है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। उसका ये ओडर क्या होता है, वो कैसा दिखता है, ये फिजिकल स्टेट्स होते हैं। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर जो है ये गैसेस है, और दूसरे जो ईथर्स है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विथ प्लेजेंट ओडर। उसकी जो स्मेल रहती है वो प्लेजेंट रहती है, एक फ्लावर्स की तरह एक अच्छी खुशबू रहती है उसकी। ठीक है, यू कैन स्मेल इन द लैबोरेटरी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, लोअर ईथर्स जो है दे आर हाईली वॉलेटाइल, यानी कि वो जब भी तुम अगर इन केस आपके पास ईथर प्रेजेंट है आपके हाथ में, इन केस आप उसका कैप ओपन करके रहोगे तो वो क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स। So here the third point, boiling points of ether show gradually increase होते जाएगा with increase in molecular mass। जब उसकी molecular mass increase होते जाएगी तो उसका boiling point भी क्या हो जाएगा? increase होते जाएगा। You can see in the textbook there is a table, उसमें different ethers दिया गया है, जैसे कि CH3OCH3 जिसका boiling point है 248, and then क्या हो जाएगा? उसके पास इथेन ऐड हो जाएगा, यानी कि C2H5OCH3। जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसकी मोलिकुलर मास जैसे ऐड हो जाएगी ज्यादा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी, 284 हो जाएगा। देन अगेन इफ यू ऐड दैट इज C2H5O हो जाएगा तो 308 इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी इन द टेबल और यू कैन इन द टेक्स्ट बुक PDF, you will understand. Okay, so let's see the second one, which is polarity and solubility. See, solubility जो क्या है, किसमें ये soluble होता है, किसमें ये soluble नहीं होता है, and polarity मैंने आपको अच्छे से explain किया है। ठीक है, in the previous video you can check my videos. Okay, तो उसमें से मैंने polarity अच्छे से with water molecule जो है उसके साथ मैंने अच्छे से explain किया है polarity क्या होता है। ठीक
अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी. वो इट एक्ट एज अ पोलर बन रहा है. ठीक है. सी ईथर में जो आर वो आर डैश है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे स्ट्रेट में नहीं रहता, ऐसे बेंड में रहता है. एग्जाम्पल मैंने पोलर जो एग्जाम्पल दिया था वाटर मॉलिक्यूल में दिया था. वाटर मॉलिक्यूल में क्या दिया था, सिंस इट हैज अ slight positive charge on one side and slight negative charge on another side, so the dipoles do not see. क्या होता है एक यहाँ पर H मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ये H2O समझ के चलो, ये ऑक्सीजन है एंड दीज आर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस दी बोथ H ग्रुप कैरीज पॉजिटिव चार्ज. तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर नियर टू ईच अदर. ठीक है. दे कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर मॉलिक्यूल कैरीज पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो हियर द पोलैरिटी विच मीन्स बीइंग अ पोलर. ठीक है. तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में क्या होता है, जो वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स जो है दे डोंट इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके. सो हियर सिंस दिस CO-C बॉन्ड एंगल, इसमें जो CO-C बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है, इट इज नॉट 180 डिग्री. सी इन केस अगर ये स्ट्रेट होता आर वो आर डैश अगर ऐसे स्ट्रेट में रहता तो वो 180 डिग्री रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ईथर है वो क्या है, ऐसे स्ट्रेट में नहीं है, यानी कि 180 डिग्री नहीं है, ये 110 डिग्री है. ठीक है. द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल इज नथिंग बट टू पोलर, टू पोल्स रहते हैं तो उसी को डाइपोल. ओके. सो डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द टू CO bonds do not cancel each other. ठीक है. तो यहाँ पर ये CO एंड ये CO bonds एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकते इस मोमेंट में. ओके. So therefore ethers passes a small net dipole moment. They passes a small net dipole moment. Okay. So example, dipole moment of diethyl ether is 1.18 D है. ठीक है. तो यहाँ पर you can see the net dipole moment of ether is this. So here so this boiling point क्या हो गया, weak polarity जिसकी होती है वो it doesn't affect the boiling point. Okay. weak polarity जिस ethers की होती है वो boiling point को इफेक्ट नहीं करता, as it is वही boiling point रहता है. ठीक है. which is same same as about the those alkanes, they having comparable molecules masses, उनके जो masses सेम रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आपको आप इसमें स्ट्रक्चर में देख लो, टेबल नंबर 11.6 you can compare the boiling points of alkane, ether and alcohol. ठीक है. So here example molecular mass of N-heptane का क्या है 100 है, तो उसका boiling point क्या है 371 है. whereas in the ether M-methyl and pentyl ether में 102 मास है इसका, तो उसका boiling point कितना है, उसका boiling point है 373 है. ओके. सो whereas in the alcohol N-hexyl alcohol में मास कितना है उसका 102 है, बट boiling point कितना आया 430 आया. So here this is about the physical properties of overall क्या होता है इसमें, वीक पोलैरिटी जो ईथर्स के होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है. सो एंड दिस ईथर्स व्हेन इट कम्स टू सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी आ गया, तो सॉल्युबल ये क्या होता है, ईथर्स जो है they are soluble in water molecules. Okay. So this is about the solubility, polarity and physical states and also boiling points of this ethers. Okay. Next we'll see the chemical properties of ethers. Okay. The laboratory test of ethers. So here in the laboratory test of ethers, usually ethers जो है वो neutral compounds in aqueous medium के अंदर. ठीक है. तो अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है एक्वस मीडियम, देन वो रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, बेसिस के साथ और कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स के साथ, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उन लोग के साथ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एंड ऑल्सो एक्टिव मेटल्स होते हैं, उन लोग के साथ ईथर्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स इन एक्वस मीडियम. हाउएवर द ईथर्स क्या करते हैं, दे डिसॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4. व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओक्सोनियम सॉल्ट्स. ठीक है. So here you can see this example ether when they dissolve in H2SO4, cold H2SO4, they form the oxonium salt.
सो नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी सिंपल, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, ठीक है। तो रिएक्शन है, जिससे पहले हम लोग देखेंगे पेरोक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं वो देखेंगे, और इसमें जो मेन है रिएक्शंस जो है अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर में इन्वॉल्व है वो देखते हैं। उसमें से पहला है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पर वेरी सिंपल, जो इथाइल हमारे ईथर है वो दे कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ वो क्या करता है, कंबाइन हो जाता है। सी हियर डाईइथाइल ईथर इज कंबाइंड विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड में फॉर्म हो गया। सो नेक्स्ट पेरोक्साइड इज H2O2, उसका यूजुअली पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है H2O2 है, पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड है, ईथर्स क्या करता है, कंबाइन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है पेरोक्साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CO बॉन्ड में जो इन्वॉल्व है वो रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट वन, हियर द रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन CO बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन है रिएक्ट करते हैं हम लोग इस ईथर्स को किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में ईथर जो है वो डायरेक्टली हम लोग हीट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू गिव दी अल्कोहल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, स्प्लिट आउट हो जाता है OH एंड H जो है स्प्लिट आउट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्म क्या होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा या फिर फिनॉल फॉर्म होगा। सी यू कैन सी दीज 3 एग्जांपल्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथर्स को हीट करेंगे विच अंडरगोज दी हाइड्रोलिसिस टू गिव दी अल्कोहल या फिर फिनॉल से देगा, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शंस, फर्स्ट वन। नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो व्हेन इन दिस रिएक्शन ईथर्स रिएक्ट विथ वेरी सिंपल, ईथर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा PCl5 टू गिव अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ईथर्स ले रहे ROR' प्लस POCl5 ले रहे, दैट गिव्स अल्काइल क्लोराइड्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या मैटर करता है, इसमें आप लोग को रिएक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शंस याद कर लो, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अराउंड 5 to 6 यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर द 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, ओके। सो नेक्स्ट रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वेरी सिंपल। यहाँ अल्काइल ईथर्स को हम लोग क्या करें, ईथर्स को वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एसिड है, हम लोग यहाँ HI या फिर HBr ले रहे हैं, दोनों एसिड कोई भी ले रहे हैं, ये क्या देगा, अल्कोहल देगा एंड एन अल्काइल हैलाइड देगा। सी हियर इट हैज गिवन दिस अल्कोहल एंड अगेन ऑन द प्रोसेस it gives alkyl halide, okay. So this is about the reaction which are involving in CO bond. Let's see the next one, which is electrophilic substitution in aromatic ring, ठीक है। So this is a very important chemical property, okay. So यहाँ पर क्या होता है, very simple, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है एरोमेटिक रिंग में, वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या है, यू कैन इमेजिन दिस इज एन R नहीं है, ये सिमेट्रिक ईथर नहीं है, ये असिमेट्रिक ईथर है, ठीक है। यहाँ एक R प्रेजेंट है और यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या एक बेंजीन रिंग है, AR यानी कि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इज अ रिंग, ये एक एक्टिवेटिंग रिंग है, where the position at the ortho para directing group, यानी कि दूसरा जो ग्रुप आके किस पोजीशन में जो जगह लेगा वो रहेगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो हियर द एविडेंस विच मीन्स द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के एविडेंस है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, व्हेन इट रिलीज तो ये क्या होगा, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इसके पास डिफिशियंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पास आउट किया है तो इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। जो लिया है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेगा, हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से पास आउट हो जाएंगे। जब जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन यानी कि पास होगा, दैट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, अगेन इट कम बैक टू दिस ऑक्सीजन ग्रुप। तो डायरेक्ट एंड पैरा ग्रुप कौन सा रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप रहेगा, ठीक है। So this is the electrophilic substitution in aromatic group. ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन का बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि नाइट्रेशन में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सल्फोनेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, फेडलक्राफ्ट रिएक्शन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है जो ये ग्रुप में है, यहाँ पर you can see in the structure 2, 3 and 4. These structures shows the directing group of ortho, para and again ortho, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन बेंजीन रिंग के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, हैलोजिनेशन। यहाँ पर आइसोनोल एनाइसोल जो एक एग्जांपल है, जो कि विच अंडरगोज द ब्रोमिनेटिंग। यहाँ पर हैलोजिन एक कंपाउंड हम लोग ले रहे, वो ले रहे मॉलिक्यूल, हमारा एलिमेंट Br ले रहे, ब्रोमीन ले रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, एनाइसोल, दिस वन, this anisole when it undergoes the bromination with bromine in acetic acid, bromine acetic acid की ये acetic acid उसमें bromine present है, even in the absence of ferric bromide catalyst, ये catalyst है, ठीक है, ये absent रहेगा तो भी क्या होगा, हमारा p bromo anisole या फिर o bromo anisole मिलेगा, ठीक है। So it is due to the activation of benzene ring by the methoxy group. This is the methoxy group. Okay, यहाँ है ना CH3O, ये methoxy group जो कि benzene ring में present है, ठीक है। So this is about the reactions of halogenation in the electrophilic substitution of aromatic ring. Next we'll see the Rayleigh-Craft reaction and also नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसमें, एनाइसोल में। सो हियर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस मैंने प्रीवियस में भी बताया था, ठीक है, वो याद करना। ओके, सी यहाँ पर वेरी सिंपल, एनाइसोल क्या करेंगे हम लोग, इसको अल्काइल क्लोराइड, यहाँ पर एग्जांपल CH3Cl अल्काइल क्लोराइड लिए या फिर एसाइल क्लोराइड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको क्या है लिविस। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेस जो है वो डोनेट करता है लेविस बेस, और लेविस एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ पर ये हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज ए कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज जस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं रहता रिएक्शन में। ओके, सो एनाइसोल क्या करेंगे, अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा प्लस एसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। ओके, सो देन यू विल गेट 4-methoxy। हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउ वी इंट्रोड्यूस दिस, बाय यूजिंग द बाय द प्रेजेंस ऑफ concentrated नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन दिस एनाइसोल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, लेकिन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड अगर प्रेजेंट रहेगा तो ही क्या होगा, ओ नाइट्रो यानी कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, किसमें, एनाइसोल में, ठीक है। सो एनाइसोल इज नथिंग, वेरी सिंपल, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, किस पे, पैरा पोजीशन। ओके, सो दिस इज एनाइसोल, इसका नेम है एनाइसोल। ओके, सो दिस इज अबाउट द नाइट्रेशन, फेडरक्राफ्ट रिएक्शन एंड और क्या था, हेलोजिनेशन था, ठीक है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब जो है अपना केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स के है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ, यानी कि यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, कैसे इस्तेमाल होता है, किधर इस्तेमाल होता है, वो देखेंगे। एंड ऑल्सो आई हैव सम टॉपिक्स दैट इज फॉर असाइनमेंट। ओके, so you have to write those. Okay, so let's see first the applications of alcohol, ethers and phenol. Okay,
सो यहाँ पर अल्कोहल्स में जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा जो है सॉल्वेंट यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर पेंट्स में, वार्निशिंग, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होता है। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट द अल्कोहल। और ईथर्स में क्या हो गया? पहले जो है डाइथाइल ईथर वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता था, लेकिन नाउ अडेज इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिडनल रिएजेंट्स लाइक फैट्स, वैक्सेस या फिर ऑयल एक्सेट्रा। ओके, so next phenols, phenol जो है it is used for the phenol formaldehyde resins, for example bakelite एक इट इज सिंथेटिक कंपाउंड, जैसे कि बैंगल बनाने में इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे प्लास्टिक, एक यूजुअली प्लास्टिक चीज है, एक इट इज सिंथेटिक कंपाउंड जो रेजिन है, ठीक है। सो बैकलाइट में इस्तेमाल होता है। फिनॉल्स आर आल्सो यूज्ड इन एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स हो गया, माउथ वॉश, कैलामाइन लोशंस, फ्लोर क्लीनर्स, इसमें सब इस्तेमाल होता है फिनॉल्स। ओके, so this is about the chapter alcohol, phenols and ethers. Okay, so let's see, I have some topics which is assignment for you. Let's see what are those. Okay, so here these assignment very important. Raman-Taman reaction important है, cold reaction, oxidation of phenol, classification of alcohol and phenols and primary, secondary, tertiary alcohols. ये assignment है आपके लिए जो कि important है, ठीक है। In the next video we'll see some important questions, okay, and also we'll see the next chapter. Okay, thank you students.